Sn of a GP, they happen to say it goes A r raised to n minus 1 upon r minus 1. Okay. How do we get convinced? Let us say I pick up a GP 1 plus 2 plus 4 plus 8 or plus 16. Let's try to, it's a GP with a product with a common ratio 2 and the opening term is A. So we can just put in A is 1 and the R is 2. Let's go for first three terms का total which is 7. क्या ये हमें 7 देगा? 1 है, 2 है, 3 है. सर जी, number of terms are 3. Sir, आपका GP 5 terms है. I said let's figure out the sum of first three terms. So upon 2 minus 1. It's going to be 8 minus 1, 7, 1. So finally answer is 7. It was 7. Sum of 5 terms, all 5 terms. So 7 plus 8, 15 and 15 plus 16, it turns up 31. So answer is का 31 of all 5 terms. So n is 5 now. Can we figure out के ये formula हमें 31 देगा? Let's work out. So with A1, R2, number of terms 5. Okay. 2 raised to 5. By now everybody should be knowing 32. But you can work out on Kelsey. 32 minus 1 upon 1. The answer is 31. The answer was 31. So we can go by that. Sn का formula is A r raised to n minus 1 upon r minus 1. Done. A viewer out there, if he is using this for the first time, he should scribble, he or she must scribble this formula 2-3 times or maybe more. ऐसा बजना चाहिए मन में. A r raised to n minus 1 because that goes in the product upon r minus 1. Other way around, it is A 1 minus r raised to n upon 1 minus r. No, it's just an algebra gimmick done over here. In fact, the derivation first brings out this formula. फिर हम ऊपर वाला बनाते. सर ऐसे कैसे बन जाते हैं? Check the first formula. From the back bracket, you remove minus common. So let us say you had A r raised to n minus 1 upon r minus 1. So think in this way. You pulled minus common out. So it's going to become 1 minus r raised to n. From A minus B, when you take minus common, it becomes B minus A in the bracket. Same way, आपने minus बाहर निकालना. इसमें से भी you take minus common, so it's going to become 1 minus r. Minus minus goes off when you happen to see that. Class में भी student, why they say need sir? वो ठीक है ना? No, that is to be used when r goes more than 1. This is to be used when r is less than 1. So r less than 1 है तो 1 बोलता है मेरे पीछे खड़े रहे. If r is more than 1 तो r बोलता है मैं 1 से आगे खड़ा रहेगा. You have to be good with both. So ऐसा ना हो कि चेंज करने में फॉर्मूला ही नया बन गया हो. So never spoil a sum. मैं इसलिए वो पेज पे नहीं जा रहा, नहीं तो तू तो रेडी हो जाएगा. You write this formula 3-4 times. कभी a r raised to n minus 1 upon r minus 1. तो कभी a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. 4 times, 5 times, 7 times, 10 times. So that not the first sum also should be spent or should be spent in getting the feel of the formula. And if it's not that way, तो maybe you are spoiling 3-4 sums. You are doing it. ये स्क्रीन पॉज करके तू वो कर रहा है. 4 बार ऊपर वो वाला लिख दिया पहला वाला एंड देन यू आर जस्ट चेंजिंग द टर्म्स. r raised to n minus 1 को 1 minus r raised to n, नीचे भी 1 minus r. That to be used when r is less than 1. So now, the Sn of a GP, it's a r raised to n minus 1 upon r minus 1, or it is a 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Write it. पेज पे बैठा है ना बुक में, लिखने का. Never allow a sum to go waste because you didn't rehearse the formula before starting the first sum. कुछ rules है which every student should follow. Now 243 से 81 कैसे आया होगा? Divide by 3 करके. लेकिन हमारा GP तो into R होता है ना, divide by R थोड़ी होता है, आगे जाने के लिए into R. So उसका मतलब है into 1 by 3 करके. लेकिन क्या 81 into 1 by 3 करेगा तो 27 आएगा? 81 into 1 by 3 करेगा तो क्या आएगा? Yes, 27 आया. So into 1 by 3. Look at the first approach what I said. 243, 81 और 27 मुझे वो दिख गया था GP फॉर्मेट जैसा लग रहा है. लेकिन 243 से 81 कैसे आया? तो मेरा पहला बोलने में क्या आया? डिवाइड बाय 3 करके. लेकिन फिर GP में हम आगे जाने के लिए डिवाइड नहीं करते, इंटू करते. तो डिवाइड बाय 3 को अगर इंटू करना है तो इंटू 1 by 3. डिवाइड बाय 3, if you want to write that thing as into, तो इंटू 1 by 3. Basic second first level का maths. But only by saying into 1 by 3, I can't say this is GP. I need to have one more सबूत. क्या 81 into 1 by 3 करके 27? Yes, वो भी आया था. So now it is fixed के R is 1 by 3
comma my A is 243 and I have to find sum of 8 terms, GP. So I started Sn is equal to A, R is 1 by 3, so R is less than 1, तो R को पीछे रखेंगे, 1 minus R is to n upon 1 minus R, done. Now let's bring the values, 243 coming in place of A, 1 minus R में 1 by 3, n बोला तो 8 terms, so raise to 8, sir 1 by 3 the whole raise to 8, मजाक, 1 by 3 the whole raise to 8 में 1 बोलता है, मुझे 8 क्यों दिखा रहे हो, 3 को दिखा दो यार, 1 by 2 का स्क्वायर में 1 by 4, मैंने 2 का स्क्वायर ही हुआ था ना, 1 went for squaring, मगर होता नहीं ना कुछ भी, the whole upon 1 minus R 1 by 3, let's finish off this denominator, घूम के ये 2 by 3 हो गया, 2 by 3 flip होके 3 by 2 हो गया, उतना मैं रेडी रखा. Now striking this, so I'll be writing now clean 3 by 2 243 and then 1 minus 1 upon 3 raised to 8, so 3 into equal to, you keep pressing equal to till it touches 9 the counter, because आपको 8 तक जाना है, मुझे गिनना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 6 5 6 1. Now इसे भी घुमाना पड़ेगा, so finally it goes 3 by 2 2 4, I'm just making the terms, फिर एक शॉर्ट कैलसी यूज करेगी, 6 5 6 0 upon 6 5 6 1, check, घुमाया तो less 1 6 5 6 0. So now on the calci, 3 into 243 into 6560, divide by 2 and further divide by 6561, it's 364.444 recurring. मैं दुविधा में आ गया, सारे ऑप्शन 364 और समथिंग है, तो मैं स्मार्ट दिमाग, 364 तो आ गया था मेरा, ऑप्शंस में डिफरेंस किधर था, वो फ्रैक्शनल पार्ट में. So let me just remove that. Which fraction out of this gives me 0.44? तो मैं 1 by 9 किया, क्योंकि I was not so good with 1 by 9. मैं बोला 1 by 9 तो 0.11 है, तो स्ट्रेट में आ गया 4 by 9 पे, क्योंकि फिर 4 by 9 हो जाएगा 0.44. I just want to try. Okay. So 364 आंसर ये दे रहा था और 4 by 9 मेरे को 0.44 दे रहा था. He is my answer. नहीं तो फिर मैन्युअली करना पड़ेगा आपको, इफ यू वांट टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ आंसर. जैसे कि 33 डिवाइड बाय 4 है, तो आपने 8 किया 32 किया, बट 1 वाज येट बैलेंस टू बी डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर इज 8 1 by 4. एंड दैट इफ यू ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन 33 by 4, तो वापस आप इधर प्लस करके घुमा के 33 by 4 कर लोगे, बट उसके लिए आपको ये ऐसा डिवीजन करना होगा. आई एम नॉट रेडी टू डू ऑल दोस थिंग्स. मैं 364 पे पहुंच गया था, ओनली इश्यू वाज कि मेरे सारे ऑप्शन 364 थे. 0.44 वो बाजू का फ्रैक्शन में से 0.44 कौन दे रहा है, इट इज सो इजी फॉर मी. मैं 1 by 9 किया, 0.11 था, तो फिर 4 by 9 0.44 होगा. सो आई जस्ट ट्राइड ऑन माय कैलसी, इट इज देयर, एंड दैट वाज रिकरिंग व्हिच वाज देयर ओवर हियर कैस. नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, सम ऑफ n टर्म्स होते हैं तो अच्छा है, क्योंकि फिर वो n ही रहता है. मगर ये जीपी है क्या? हाँ देख, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गेट यूज्ड टू दिस. 0.1 into 0.1 will make it 0.01. yes, प्रोडक्ट 1 ही है, लेकिन पॉइंट अब और एक प्लेस पीछे गया, 2 के बाद पॉइंट, इनटू अगेन 0.1, सो 0.001. 1 और 1 का प्रोडक्ट तो 1 ही है, लेकिन नाउ प्लेस ऑफ पॉइंट इज आफ्टर 3 प्लेसेस, एक पॉइंट पीछे ना. इफ यू सी वी स्टार्ट हियर, देन वी सी हियर, देन वी सी हियर, एक एक प्लेस पीछे जा रहा है, बिकॉज आप 0.1 से ही मतलब माने वैल्यू सेम रही, लेकिन पॉइंट प्लेस पीछे जा रहा है. इनटू 1 more 0.1 लेटर से, सो आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन अब पॉइंट आएगा 4 प्लेसेस के पीछे. So now when you see this to this to this, आपको पॉइंट एक एक प्लेस पीछे जाते दिख रहा है. ऐसे ही बताया, हेल्प्स अभी इधर हेल्प कर रहे देख. 0.3 है, 333 सब जगह वही है, खाली पॉइंट प्लेस पीछे पीछे जा रहा है. सो इट इज एक्चुअली इनटू 0.1, जिसकी वजह से वो 0.03 हो गया, इनटू 0.1. या देन यू शुड थिंक इन दिस वे, 0.3 को 10 से डिवाइड करूंगा तब जाके वो 0.03 होगा. फिर 0.03 को 10 से डिवाइड करूंगा तो और एक प्लेस पीछे जाएगा, बट डिवाइड बाय 10 हैज टू बी टेकन इन जीपीएस इनटू 1 by 10, बिकॉज हम जीपी में जब प्रोसीड होते हैं तो हम इनटू आर बोलते हैं, डिवाइड आर नहीं बोलते. सो आई गॉट इट के 0.3 से 0.03 डिवाइड बाय 10 हुआ है, 0.03 से 0.003 डिवाइड बाय 10 हुआ है, मगर मुझे आर का सर्च है और आर इज इनटू आर होता है. सो डिवाइड बाय 10 बोला तो इनटू 1 by 10, which is 0.1. But if you have understood that blank page का अभी जो बात बोला, only the point place is moving पीछे, that means you are multiplying by only 0.1. Actually you are multiplying by 1 by 10. तभी वो point place पीछे पीछे जाता है. Good. चलो ready? अब A भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, तो स्टॉप क्यों हो रहा है? और N तो हमें चाहिए नहीं, because sum of n terms ही ढूंढना है.
सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी इज ए नहीं रुक जा, तेरा r 0.1 है माने ही इज लेस देन 1, सो a 1 माइनस r रेज टू n, r बोला मैं पीछे जाएगा अभी, आई एम लेस देन 1 तो मैं उसके पीछे खड़ा रहेगा. सो नाउ ब्रिंग इन योर a इज 0.3 डन, 1 minus 0.1 done, raised to n done, 1 minus 0.1 done, 1 minus 0.1 is 0.9 done, and then 0.3 upon 0.9, you can just get rid of the points, 3 by 9, 0.3 upon 0.9, it's as good as multiply n and d by, अभी मम्मी कहती दिखा भाई, मम्मी बोलती है एक एक प्लेस ऊपर नीचे आगे चले जाओ, you can always, but technically it means you are multiplying n and d by 10, that becomes 3 by 9, so it becomes 1 by 3, okay, so answer is actually 1 by 3 and 1 minus 0.1 raised to n. लेकिन ऑप्शन में यार उन्होंने वो 0.1 को कुछ ट्रीटमेंट दिया है, क्या दिया होगा ट्रीटमेंट, 0.1 को मैक्स कोई भी स्टूडेंट 1 by 10 लिखता है, और ये होल रेज टू n में 1 बोलता है, 1 by 10 द होल रेज टू n में 1 बोलता है मुझे क्यों दिखा रहे हो n, वो नीचे वाले को दिखाओ, वो बढ़ेगा, वो फूला फलेगा. दैट्स योर ऑप्शन नंबर ए. ये रूट 3 आता है ना तकलीफ मेरे को यार, रूट में आता है ना कुछ तो, चलो थोड़ा स्पेस करके लिखेंगे. 1 by रूट 3 प्लस 1, क्या उधर जब मैं आर मार्क करता हूँ ना तो थोड़ा सा टाइनी हो जाता है वो, ऐसा ये सीक्वेंस चल रहा है. यहां से यहां कैसे पहुंचा होगा, ऑफ कोर्स इनटू रूट 3, तभी तो वो कट के 1 पहुंचा ना उधर. सो आई हैव गॉन इनटू रूट 3, 1 by रूट 3 इनटू रूट 3 कट 1 हो गया. लेकिन 1 से जब मैं इनटू रूट 3 करता हूं तो स्टूडेंट हंसता है, सर पोपट हो गया ना. जब 1 इंटू रूट 3 करते हो तो सर वो थर्ड टर्म नहीं आ रहा है, उन्होंने थोड़ा तुम्हें ऐसा ट्रिक किया, ये 3 को तो रूट 3 लिख सकता है, कट सी इंटू रूट 3 हुआ है, सो इंटू रूट 3 करके इधर आया, इंटू रूट 3 करके तो इधर पहुंचा है. सो नाउ इट इज कंफर्म दैट द आर इज गोइंग रूट 3 एंड द ए इज योर 1 by रूट 3. सो थोड़ा क्लमजी हो गया तो लिख के रखना अच्छा रहता है, हाईलाइट भी कर देने का, क्योंकि नजर इधर उधर भागता है. कैन आई रिपीट दैट पार्ट ऑफ द, मैं पूरा सम किया ही किधर है कि तू गुस्सा करेगा मेरे से, तो गुस्सा क्यों करेगी कोई, nobody in the class ever no thinks that way. वो बोलते चल नसीब और एक बार देखेंगे, किसी ना किसी का तो मिस हुआ होगा ना, आई एम सो सॉरी. ओके, सो प्लस 1 प्लस 1 by रूट 3, 1 by रूट 3 से 1 पे जाने के लिए तूने इंटू रूट 3 किया होगा, 1 by a से अगर 1 जाना है तो इंटू a करेगा. लेकिन यहां मेरे को जब उन्होंने ऐसा दिया था ना तो आई जस्ट फेल्ट इनिशियली कि यार चलो 1 इंटू रूट 3 थोड़ी ये होता है, बाद में क्लिक हुआ ध्यान से, this is रूट 3 cut, yup. So I logged in, my a was 1 by रूट 3, I logged in, my r is रूट 3 and it's a gp, so I got it as gp करना है, sum of gp terms करना है. मगर 18 चलो अभी है, अभी कूदे तो कूदना ही है. So sn is equal to 1 by रूट नहीं, your r is रूट 3, सॉरी रूट 3 का बहुत लोग को मालूम होता है, नहीं तो मालूम नहीं तो अभी कर लेना, उसमें क्या है, इट्स मोर देन 1. so आपको r minus 1 वाला फॉर्मूला, so a r is to n minus 1 upon r minus 1. ओके, इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि ये जो फॉर्मूला गा रहे हैं ना, जैसे हमारे एपी में तुझे अगर याद होगा तो टीएन के टाइम बाद में धीरे धीरे वी टू ओनली सिंग a प्लस n minus 1 d 1 में, वो बोलते बोलते हम a और d का वैल्यू, तो ऐसा ही एसएन में भी, बट यू शुडंट ट्राई टू अर्ली, एंड इफ यू डोंट फील सो डोंट ट्राई ओनली. गंदा टेस्ट करना, सॉल्व करना बंद करना, उससे अच्छा एक लाइन लिखना, थोड़ा फास्ट लिखना, ऐसा कुछ नहीं है. a is coming 1 by रूट 3, ओके, r में हमारा रूट 3 आ रहा है, n में 18 आ रहा है, 18 टर्म्स, -1 अपॉन रूट 3 -1. नीचे का रूट 3 -1 डिमांड्स के हम रूट 3 प्लस 1 करें, रूट 3 प्लस 1 करें. दैट्स व्हाट सर्च पार्ट ऑफ द टॉपिक 1 डिड टीच यू, और मे बी स्कूल टीचेस यू दिस. नीचे रूट 3 -1 है, सो रहा है क्या तू, चल उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर, रैशनलाइज कर उसको. एंड देयर वाज अ गुड इनफ प्रॉम्प्ट इन द सम आल्सो, देखो सम में हर ऑप्शन में, एक ऑप्शन में तो रूट 3 प्लस 1 दिख ही रहा है मुझे. सो नाउ कमिंग बैक, 1 अपॉन रूट 3, नीचे क्या होगा वो जो तो सोचा था, a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर आ रहा है 3 माइनस बी स्क्वायर आ रहा है 1 का स्क्वायर आ रहा है, सो 1. अब ऊपर क्या है, इधर आपका रूट 3 प्लस 1 रह गया, दिस टर्म, रूट 3 रेज टू 18, कैलसी पे मत ट्राई कर, थोड़ा इंडेक्सिस खुद से कर, रूट 3 रेज टू 18 अलग से सॉल्व करते ना, और दैट्स गोइंग टू बी 3 रेज टू हाफ, और 12 18, सो इट्स गोइंग टू बी 9, सो 3 रेज टू 9. अब ये जब उधर करने जाएगा तो स्टेप्स बहुत खाता था, बाजू का सब वापस लिखो बैठे बैठे, थोड़ा अलग से कर लिया. सो नाउ 3 रेज टू 9, 3 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, सो 19683 इसका वैल्यू है, -1. ओके डन.
अब वो पार्ट तेरा कैलसी में रेडी है, कौन सा 19683, तो खत्म कर, -1 कर, डिवाइड बाय 2 भी कर ले, प्ले स्मार्ट। सो अल्टीमेटली आंसर है क्या 9841 ऑफ दैट पार्ट, बाजू में √3 + 1 और नीचे आपका एक √3 रह गया है। ये रहा आपका ऑप्शन ए। So many things you can learn. First of all, जीपी जिद्दी था, इंटू √3 तो बहुत इजी था, लेकिन अगला वाला 1 × √3 वो नहीं दे रहा था, दे ट्रिक्ड यू। वो 3/√3 को थोड़ा डाइल्यूट कर, ऊपर का 3 को √3 लिख, सो कट के खाली √3 दिखेगा, तो वापस इंटू √3 दिखा, सो यू लॉक्ड आर वाज √3। ए दिख रहा है, S18 ढूंढना है, चालू कर। अभी तू पहुंचा था यहां तक, नो इतना तक पहुंचा था इन द फॉर्मूला, आफ्टर फिनिशिंग राइटिंग द फॉर्मूला। √3 - 1 बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट, गुड माने नॉर्मल स्टूडेंट, तो बाजू में √3 + 1 चालू किया, एंड यू आर हैप्पी बिकॉज वो ऑप्शन में दिख रहा है उधर, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यू फिनिश्ड ऑफ a² - b², 3 - 1 आंसर हो गया इधर। ऊपर वाला इधर साइड में बैठा है, ये इधर आराम से बैठा है, ये √3 है ना, टाइम खाएगा। इधर अगर सॉल्व करते जाएगा ना, तो इट विल जस्ट ऐड ऑन राइटिंग नो अदर थिंग्स, जो आइडल बैठे बार बार विल वेस्ट योर टाइम। अलग सॉल्व करना, या मेंटली 3/2 है वो, तो 9 हो गया कैलसी पे, तो 3/9 कर लिया, 3 4 कर लिया, ये यहाँ पहुंच गया। तो अभी -1 ओके, फिर नीचे 3 - 1 है ओके, 9841। सो समहाउ ऐसा ही मालूम है तुझे, ऐसा ही तो स्कूल वाले बच्चों को मालूम होता है, ऐसा इज PNR/100। हम एक्चुअली हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में PNI बोलते हैं, मगर अभी लेट अस प्रिज्यूम कि आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो हम SI को हमारा स्कूल का PNR/100, ये इंसान 8,000 बोरो करता है ये रेट पे, ये पर ईयर रेट है, बट इट डिसाइड्स टू पे ऑफ द फुल थिंग, द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो अभी तक जीपी तो फिर आया ही नहीं है। अब ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग, ओ ये हो गया जीपी, इट्स लाइक द प्रीवियस सम, जीपी हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, ही वांट्स टू पे बैक इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा उसको। सो ही हैव टू पे बैक 8,000 द प्रिंसिपल अमाउंट, मैं इधर लिखूं 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट तो भरना ही होगा, प्लस द इंटरेस्ट ऑन दैट SI विच इज PNR। P में आ गया 8,000, N में आया 10 महीना, सो डिवाइड बाय 12 फॉर इयर्स, एंड R इज 2.76/100, 2.76। सो कैन वी वर्क आउट, वी हैव टू वर्क आउट फर्स्ट दैट प्लस 8,000, इतना तो 8,000 प्लस 8,000 इंटू दबाएगा तो 16,000 इंटू 10/12 हो जाएगा। कैसी वही समझता है, कैसी डजंट अंडरस्टैंड के बॉडमस क्या है, कि पहले कौन आना चाहिए। सो यू हैव टू वर्क आउट इन द सीक्वेंस, तो पहले वो सर्कल होगा फिर प्लस 8,000, सो 8,000 into 10 into 2.76 divided by 1200, that is a one shot, so 184 plus 8,000 on that. So 8184 repo कर रहा है वो, sorry repay कर रहा है in 10 monthly installments, and every installment is double than the previous one. So this is S10, this is S10, I should be very precise, S10 नहीं है, 10 टर्म का टोटल 8184 है। तो हम रुके क्यों है, चलो स्टार्ट करते हैं। बट यू हैव मिस्ड आउट समथिंग, फर्स्ट टर्म ढूंढने बोला मैंने, ये तो मालूम ही नहीं है, मगर फिर जीपी कौन से बेस पे बोला था तू। एवरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डबल देन द प्रीवियस वन, सो रेशियो आपका 2 है, आज 1 पैसा, कल 2 पैसा, उसके बाद 4 पैसा, सो रेशियो इज 2। माने आज वो 10 रुपया देगा, कल वो 20 रुपया देगा, परसों 40 देगा, उसके बाद 80 देगा। सो आर आपका 2 है, वो भी आपको मालूम है। नाउ लेट्स अप्लाई SN फॉर्मूला, इट्स गिवन टू मी 8184 SN। Coming back, your R is 2, so R is more than 1, so R पहले आएगा, so A R is to N - 1 upon R - 1 is 8184। A मुझे मालूम नहीं है, जगह नहीं, अब इट गोज आगे नेक्स्ट कॉलम में, इनटू व्हाट, रेशियो मुझे मालूम है 2, और तू लिखा N, क्या पढ़ता है तू। सी स्मॉल लैप्सेस इन योर रीडिंग, और आप N में N लिख रहे हो, यू मिस्ड आउट, बट जस्ट मूड आउट ऑफ योर माइंड के N वाज तो 10, और फिर होने बैठ गया, A भी नहीं था, N नहीं था, मैं सॉल्व कैसे करता। तू N मिस किया, N था रे, 10 इंस्टॉलमेंट्स में उसको रीपे, माने 10 टर्म्स में ये रीपे हो जाना चाहिए। सो N is 10 - 1 upon 2 - 1, that's 8184। सो लेट्स फॉरगेट दैट, उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अब ये फिनिश करते हैं। सो बेसिकली इन इंडाइसिस आई ऑलवेज बीन सेइंग कि स्कूल स्टूडेंट को भी 2/10 1024 याद होता है, तो क्लास भी बोलता है चल हम लोग फटाफट, वी लाइक प्रेसिंग इक्वल टू, सो इनटू इक्वल टू, क्योंकि उनका काउंटर है ना, उनको ऐसा बोलता है काउंटर नहीं है तो भी कर, अब मुझे गिनना पड़ता है 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 2/10 1024 हो गया, -1 भी करके रखते, सो A इंटू 1023, और सामने है 8184, सब कैलसी को तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं तोड़ने का नहीं है भाई,
डिसकंटिन्यू. बट एन्यूटी वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला बच्चा बोलेगा किधर कोई बच्चा नहीं है, नोबडी इज किड. इनफैक्ट नॉट टू बी व्यूड वाला चीज तुम पहला देखता है, तो बच्चा किधर हुआ. वो लोग जानता है कि इसको हम डिनोमिनेटर में ला के उधर 8184 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दे विल गो कंटिन्यूस ऑन द कैलसी, क्योंकि उन लोग डिवाइड इक्वल टू करके 1023 को रेसिप्रोकल कर लेते हैं. So he's down in the denominator now, and then वहां से 8184. So those who are not aware of this, don't break your heads के मैं last 5 सेकंड में क्या बोला था. Rather clear up your calci. 8184 डिवाइड बाय 1023 कर ले और जिंदगी को थोड़ा सा हैप्पी रख ले. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8 आ गया है, so you are not able to see the answer. I can see that. Check. लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पूछ रहे, कमाल लोग है यार. फिर भूल गया तो 10 टर्म था, माने T10 पूछ रहा है. So T10 sorry T10 is going to be what? AR is to 9, AR is to 9. So 8 है first term और R हमारा 2 है raised to 9. You can't keep forgetting R कहाँ था, A कहाँ था, नहीं तो उससे अच्छा पहले तो इधर लिख दे R is 2, N is 10. While reading when you just feel it, that's a good idea. I should not be making any apologies over here. But I thought कि यार छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें से कुछ चीजें हमने डिसाइड की है. 10 इंस्टॉलमेंट्स बोला है, एवरी इंस्टॉलमेंट डबल द प्रीवियस वन. तो यार ठीक है यार, मैं बोल रहा हूं तो मैं कुछ रास्ता निकाल लेता हूं. मैं पढ़ते पढ़ते लिखा है N10 है, R2 है, GP है, चलो. सो फाइनली 2 raised to 9. सो इट्स गोइंग टू बी 2 into equal to, एंड देन आपको क्लियर करना होगा, नहीं तो प्रीवियस काउंटर्स चल रहा है वो. तब आपका काउंटर 10 तक आफ्टर यू कीप सक्सेसफुली प्रेसिंग योर इक्वल टू. सो 3 4 5 6 7 8 9 512 एंड देन इनटू 8 इट्स गोइंग टू गिव यू 409. माने आखिरी इंस्टॉलमेंट उसका, व्हाट अ फनी थिंग ना, शुरू करता है 8 रुपए से और आखिरी वाला वो बढ़ता है 4096. एक्सपोनेंशियल है ना ये, योर जीपी इज एक्सपोनेंशियल, इट्स रेज्ड टू n. कमिंग वाला सब मैंने बहुत बढ़िया. काश आई वाज इन अ पोजीशन टू गिव यू दैट टाइनी लिटिल स्टोरी ऑफ माय पुअर फ्रेंड. इनफैक्ट मैं भी पुअर है, लेकिन वो रिलेटिवली मुझसे भी ज्यादा पुअर था. अभी दिस इज पैन इंडिया, सो आई डोंट नो हाउ मच ज्योग्राफी यू नो अबाउट मुंबई. ना जानो तो ज्यादा अच्छा है. मुंबई वाले लोग को ही नहीं पता कहाँ तक चले गया है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, उनके बीच में भी कोई फाटा निकलता तो उधर भी गया है लोग. सो मेरा कोई एकदम स्कूल टाइम फ्रेंड, कॉलेज टाइम फ्रेंड, वो कोई बहुत करीब, ही वाज स्टेइंग थोड़ा वो आउटस्कर्ट्स में, मन रूम में, किचन भी अंदर ही है. बेडरूम मिस नहीं कर रहा था बिकॉज शादी नहीं हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वी पास आउट ऑफ द कॉलेज. देन ही इज टू बिग नाउ. नहीं अभी तो स्टोरी सुनना. तो आई वॉज रीजनेबल, गुड फैमिली, ठीक है. चल भी वो फॉर्च्यून डेस्टिनी के मैं पैदा हुआ, बाद में बनाने का काम मेरा था, लेकिन वो अपॉइंटेड था. somebody gifted that thing to me. he was not, but he was brilliant, a bit brilliant than me. सब तो फिर उसी से सीखते, किधर से ढूंढेगा उसको. कहानी तो सुन. तो we just passed out though, we were in search of job. So high-fi qualification, good qualification. We don't belong to your community, CA community. But ठीक है ना. उसे जॉब नहीं मिली, मुझे मिल गई. He was in more need of job. I could have spent something money. चलिए थोड़ा घूम लेते. थोड़ा गर्लफ्रेंड भी था, शादी भी बनाने का था. उसको गर्लफ्रेंड भी नहीं था. फिर एक दिन पता नहीं what happened, because he had actually worked very hard through life till that point. तो शायद वो शिव भगवान उधर कोई एरिया में घूम रहे हो, कैसे वो इंस्पेक्शन के लिए आए होगे. हाँ यार, ये उसने पिए को बोले बच्चे को, यार तुमने अभी तक कुछ दिया नहीं है. 20 years तक he is grilling himself in one room against all odds. He has done this qualification. टपली बजाया शिव भगवान उसका वो पिए को. मतलब क्या रे गधेड़ा, मैं पूरा संसार देखेगा कि एक एक का देखेगा, तेरे को रखा क्या कुछ. राइट नाउ पे फटक से उसका लॉटरी निकला 65 लाख का. सम देख जरा. 1996, दिस वाज द ईयर वी पास्ड आउट एक्चुअली. इसलिए 1996 को मुझे ये कहानी याद आ रही है. तो हम लोग हमारे बैच 1996 बोलते हैं. 65 लाख का लॉटरी. ही इज कॉलिंग मी मिडनाइट, ए बब्बू बब्बू बब्बू. तो हम लोग को ऐसा प्यार से हम लोग नो पेट नेम्स. तो अरे 65 लाख का लॉटरी है. मैं बोला तू नींद में है, दारू वाला तो नहीं पीता था वो, मैं थोड़ा बहुत कभी पी लेता, वो नहीं पीता था यार. ही इज सिंपल मैन यार. ये बोले तू यार तू एक काम कर, ठंडे मुंह से पानी, बिकॉज हम थोड़े जले से यार, गुजराती ना यार, अपना किसी का भी कुछ अच्छा हो तो अपने को बुरा लग जाता है. उसका कैसा हो गया है, मुंह पे तो नहीं बोलते. मैं बोला यार तू एक काम कर, पहले लॉटरी का वो नंबर देख, माने वो अमाउंट देख. मे बी तू थोड़ा सा ना यार, थोड़ा एकदम वन रूम वाला, तो तेरे को ऐसा 65 लाख ऐसा कितना जीरो. नो इकोनॉमिक ऑफेंस प्लीज.
नो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंस, दिस जस्ट अ फनी स्टोरी। विलन देख कौन है तो इसका, बोला नहीं नहीं मैं गिना है 65, ऐसा 5 0 लिखा है पीछे 65 के बाद, 65 लाख ही है। नंबर भी मैं 3 बार चेक करवाया है, पड़ोसी से सबसे चेक करवाया। ही वॉज वेरी हैप्पी। 20% गवर्नमेंट वो टैक्स कट करता, बोल चलेगा 52 लाख तो मिलता है ना मेरे को। सर 52, अब 65 में से तो 20% निकलेगा तो 52 ही रहता है, 13 लाख निकल गया ना। 13 लाख नहीं 13 lakhs निकल गए। 6.5 10%, 65 लाख है तो मेरा पापा सिखा 10% बोलेगा तो डिवाइड बाई 10 कर, 6.5 lakhs, उसका डबल 13 लाख निकाल, उसमें से गवर्नमेंट लेके गया 13 लाख, तो लेके तो जाएगा ना, तो तुमने तो ये सब बनाया कैसे सब चीज। 52 lakhs बोला, और 96 में 52 बोलेगा तो इट्स लाइक यू आर अ बिलियनर यार। मैंने लैख का वैल्यू बहुत, और मुंबई में तो बहुत ज्यादा था, बिकॉज यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ मुंबई पोस्ट 92-93, सो इट वॉज टोटली शेकल्ड। तो वो आप अपने पेरेंट्स को पूछना प्लीज। तो 52 lakhs का लॉटरी उसको लगा, माने कैश बैंक अकाउंट जमा। उसके कुछ चौथे दिन उसका मंगनी तय हो गया, फोटो भेजा मेरे को व्हाट्सएप पे, जबकि उधर व्हाट्सएप नहीं था उस समय में, लेकिन भेजा मेरे को उसने व्हाट्सएप पे फोटो। मैं बोला आइला डैम लाइक हीरोइन मैन, मैंने उस टाइम की कोई हीरोइन उसको बीट ना कर सके। बोला यार मैं तो जल के राख हो गया है, ये शर्ट काला हो गया देख मेरा, इतना जल गया मैं। आई वेंट मैड। मैं बोला क्या है ये, व्हाट फनी थिंग दिस इज यार। इतना भगवान थोड़ी मेहरबान होता है किसी पे, मगर शिव भगवान को कौन बोलेगा। वो तो मालूम है ना, जब प्रकोप होता है तो फाड़ के मार देता है सबकी, और जब दिल खोल के देता है तो कोई सीमा ही नहीं है, सारा संसार तेरा है। उसके लिए तो संसार से बढ़ के कुछ हो गया। 65 लाख, साथ में ये हीरोइन से भी बढ़कर कोई, वो भी था ठीक ठाक ही था, ही वाज हैंडसम ओनली। भगवान ने एक डिपार्टमेंट तो अच्छा दिया था उसको। फिर पता नहीं वो रोते रोते एक दिन घर आया, यार बाबू दिल भराया है मेरा, आई कांट टेक दिस मच। तो आई जस्ट थॉट कि ही जस्ट ट्राइंग टू गिव अवे ओ गर्लफ्रेंड, मैं ये शादी नहीं कर सकता, नहीं इतना भगवान से मैं लालच नहीं करेगा। वो कुछ और ही निकाला बाहर, मैं डोनेट करेगा। कुछ फरवरी 96 का महीना चल रहा था। अब सम पढ़ो यार सर, कहानी सम, तो सम में से तो कहानी है ना। बोला मैं आज 1 रुपया देगा, कल मैं 2 रुपया देगा, परसों 4 देगा। मैं बोला, मैं उसको गाली दिया, सब बोल दिया, जो भी फ्रेंड्स है ना यार, पाल्स, यू पाल्स, चड्डी फ्रेंड्स ही बोल सकते, स्कूल भी एक ही था हमारा, बट कुडंट हेल्प हिम इन दोस डेज। उतना भी हम लोग रॉयल फैमिली के नहीं थे, अपना संभल जाता था बस। बट वट एवर हेल्प आई कुड, वी यूज्ड टू ऑलवेज शेयर, ऑल गुड थिंग्स वी हैव शेयर्ड। दारू पीता नहीं था तो मैं आइस नेवर आस्क्ड हिम, और चाहता भी नहीं था। नाउ कमिंग बैक, वो बोला ठीक है तेरे मन में। मैं बोला तू झंडू है यार, 52 लाख रुपया थे, 52 लाख रुपए, तो डोनेशन क्या कर रहा है, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया। बोला ठीक है ना यार, मेरे मन में इतना में करेगा, मैं पूरा महीना करेगा। तो मैं बोला चल करते अभी पूरा महीना, फरवरी 1996 का पूरा महीना वो इस पैटर्न में डोनेट करेगा। पहला 1 रुपया देगा डे 1, फरवरी 1, फरवरी 2 को 2 रुपया, फरवरी 3 को डबल 4 रुपीज, लिखा है ना, सम पढ़ो यार, डबल द अमाउंट व्हाट ही डोनेट्स द प्रीवियस डे। सो 1 रुपी, 2 रुपीज, 4 रुपीज, 8 रुपीज, ऐसा चलते चलते 29 डेज तक वो गया। सज्जी फरवरी 28 ये ढोकले 1996, इट्स अ लीप ईयर, लास्ट का 96 नहीं देखा तू, डिवाइड बाय 4 कर, डिवाइड हो रहा है, इट्स अ लीप ईयर, 29 डेज। चल देखते कितना डोनेशन किया वो। सो एस 29 ना, 29 टर्म्स, सो A1 ने और R भी देख ले भाई, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 तो हमको मालूम है ना डबल कर रहा है। सो एस 29, ओके इस बार लिख के रख, तो बीच बीच में अटक जाता है। A is 1, R is 2 and N is 29, ओके डन। नाउ R is more than 1 तो R आगे आएगा, A R is to N minus 1 upon R minus 1। I was very excited, मैं ये सब घर पे कर रहा था, कितना जाएगा उसके जेब से। सो पहला दिन 1 था, फिर बाद में वो रेशियो 2 था, 29 टर्म्स 29 डेज डोनेट किया था, -1 नीचे 2 -1। चलो ये सब तो कचरा गया, कचरा मत बोलो प्लीज। 2:29 करना ही पड़ेगा, एट टाइम्स तो दे हेल्प यू इन द एग्जाम, मगर वो सारा लोग है ना 2:28 देते, देखो ट्रैप देते, तो तू इंटू और एक 2 कर ले, मगर तू तो 28 ही ले चुका था फरवरी को, एंड दैट इज व्हाई दैट वैल्यू सपोर्टेड यू, क्रैश खत्म। सो 2 into equal to समथिंग लाइक दैट। सो मेरे को वो आप काउंटर 30 तक चले जाओगे, और उसमें जब आप -1 करोगे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रीच टू दिस आंसर। आई एम सो सॉरी, यू नो दिस ऑल आर हैपनिंग इन पैसे। माय गुडनेस, क्या चीपड़ी इंसान था वो।
लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ. आपका ये ऐसा आया होगा स्क्रीन पे. चलो मैं भी कर ही लेता हूँ. नहीं वो बात तो अभी कन्फेस करूंगा. 2 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सॉरी आपके ईयर्स को थोड़ा तकलीफ हो रहा है. 21 22 23 24 25 26 27 28 29. ये दैट्स 2 रेज़ टू 29 -1. देख भाई सब लिखा है ना. 5 3 6 8 7 0 9 1 1. इतना पैसा डोनेट हुआ है उसका. चीपरी इंसान था. मैंने बोला यार मुझे बहुत गुस्सा आ गया था. मैं 1 पैसा दूंगा फिर 2 पैसा. मैं बोला क्या तू 52 लाख रुपीस तेरा हुआ है प्राइज मनी लॉटरी. ये उसने डोनेट किया पैसे में. फिर मैंने उसको रुपये में कन्वर्ट किया. द मोमेंट आई पुट कॉमन आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. He donated 53 lakh 68,709 and he had only 52 lakh. और उसका तो इनकम चालू भी नहीं हुआ था, जॉब ही नहीं था. Means he was short of 1,68,709 0.11 पैसे. 1,68,709 rupees and 11 पैसे. He was short of that. उसका वो 1 रूम था ना, वो भी उसको बेचना पड़ा. वो भी गया उसके हाथ से. Was a sad end. कहानी खत्म नहीं हुआ. Somehow he took it. Then I managed for him. चल ना तू मेरे यहाँ एक बाजू में एक छोटा सा एक नो रूम है, जा, we'll enjoy. Because this is सदमा यार. He was totally shaken but he was big hearted because उसको लगा 50 लाख ऐसे भी मेरे तो थे नहीं ना, दे दिए यार, ठीक है. बस एक अफसोस हो गया कि एक रूम था वो भी चले गया. बड़ा अफसोस तो अब आना था थर्ड डे. फोन आया मोबाइल पे. मोबाइल था नहीं उस जमाने में. मोबाइल पे फोन, कुछ तो समझ यार. मोबाइल पे फोन आया, वो लड़की ने ब्रेकअप भी कर लिया. बस उस दिन वो पहली बार बियर पिया मेरे साथ. आज कहीं तो बार में बैठा होगा. तब से वो बाहर आया ही नहीं बाहर से. कुछ दिन बाद तो मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजा. देख मेरी वो जिससे शादी होती ना, वो स्विट्जरलैंड में एंजॉय कर रही है. एक आदमी भी था उसके साथ मगर उसने उसका फोटो नहीं दिखा. मैंने वो थोड़ा बैक में ऐसा उसने फोटो लिया हुआ है. गर्ल का फ्रंट फोटो है, उसका बैक है. वो ब्लैक शर्ट पहना है उसने. क्लास में स्टूडेंट समझ जाते हैं सर आप ही हो गया. तो मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ उसमें. मैंने थोड़ी उसको सजेस्ट किया था डोनेट कर करके. भगवान ने सोच समझ के तेरे को दिया था ना. एक्सेस जो हो उसको डोनेट करो ना. अपना पहला इनकम थोड़ी कोई डोनेट कर देगा यार. बट पता नहीं. चलो आंसर हो गया, सम हो गया. ओनली थिंग के वी जस्ट मिसराइट कि वो पैसे में था. सो ये टोटल पहले पैसे में आया था, उसमें 100 मैं डिवाइड किया. इवन आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक आफ्टर कंप्लीटिंग द सम. जब मैं कॉमा डाला ना, इट केम आउट एज अ शॉक टू मी. He donated 53,68,000. Money is short of 1,68,000 जिसके लिए उसने अपना रूम भी बेच दिया. Student enjoys. Sorry थोड़ा मैंने इसको खींच लिया. Now nobody can say that it is out of the context of the sum. Sometimes it just puts the class back onto track. थोड़ा happy. See what's the criteria of good learning? Excitement और खुशी. दुख से या सैड होके कुछ भी काम करेगा. Even the best of the work, if you are sad and if you are doing it, doesn't produce any result. मुझे ही अच्छा लगता है ऐसा. अब आधा घंटा खींच लो उसको. फिर जाने के टाइम गाली देगा लेकिन जाने तक वो खुश है. जाने के टाइम वो जब घड़ी देखो साला डिनर गया. तो नॉर्मली हम लोग का इवनिंग लेक्चर्स होता है तो फिर वो दे एंजॉय. लेट्स प्रोसीड आगे. थोड़ा साइंस बेस्ड सम आया है. यू आर रीडिंग द 10th सम. A tennis ball rebounds each time to a height equal to 1/2 of the height of the previous bounce. ये line itself says कि it's a GP. Every next bounce will be half the height of the previous bounce. मान let us say वो पहले 10 से फेंका तो next bounce will be only up till 5. फिर उसके बाद 2.5. फिर उसके बाद सवा बोले तो 1.25. Every next bounce is half the previous bounce. It is dropped from a height of 8 meters. Okay. So if I just portray one simple diagram, it is dropped from a height of 8 meters. In the next bounce, it's going to go up 4 meters, up and down. In the next one, 2 up and down. In the next one, 1 up and down. ऐसा करते करते 10 hits. Because we are supposed to find the total vertical distance traveled by this ball when it hits the ground 10th time. Okay.
So now I think so the sum of distances as the diagram portrays has to go in this way. 8 plus 2 times of 4. ये लिखा नहीं कि स्टूडेंट फटक से, वो 8 तो एक ही बार लिखा, हाँ तो it was dropped from a height of 8 meters ना, so वो तो एक ही vertical हुआ, but the next bounce it goes 4 up and 4 down, so 2 times 4 total vertical distance traveled, so 4 up जाएगा 4 down जाएगा, and likewise the next also 2 times of 2, 2 up 2 down, इसके लिए एरो मार्क्स उसके ऊपर अप एंड डाउन दोनों है, फर्स्ट पे खाली डाउन ही है. Similarly for the next one also 2 times, 1 up 1 down, ऐसा चलते चलते 10 hits. So anybody would prefer के sir let's keep 2 common outside for at least the rest of the term, so it becomes 4 plus 2 plus 1 and going up till 9 terms. इधर वापस स्टूडेंट को देखेगा तो अजीब देखेगा, वो उधर डायग्राम में 10 लिखा हुआ है, इधर 9. That's your first hit. So remaining 9 hits in the bracket. And in fact only the bracket is forming right now a GP for you. जैसे कि it was discussed, into half हो रहा है. That was given in the sum. Okay, every next bounce will be half the previous bounce. So let's complete the sum now. We have got S of GP, sum of GP terms, 9 terms. So before we start, हमेशा हमारा A और R confusing रहता है. So A is 4, the R is half, and the terms are 9. I hope you understood the 9 terms. First hit वो 8 दिखा रहा है, बाकी 9 hits bracket में है. So coming back 8 plus 2, we start. R is half, so R is less than 1. तो 1 बोला मैं R से आगे रहेगा. So A 1 minus R raised to n upon 1 minus R. So finally it happens to go 8 plus 2 into. The first term is 4. 1 minus 1 by 2 raised to 9. Sir, 1 by 2 the whole raised to 9. Now I think we have discussed so many times. Whole raised to 9 है. But 1 से इसके मुझे क्यों 9 दिखा रहे हो? मैं raised to 9 हूँ कि 90 हो कि 900 हूँ? मैं तो 1 ही रहने वाला है. वो 2 को आप दे दो पावर. ऐसा 1 बोलता है. Upon 1 minus half. Now 1 minus half there is no need to cross multiply. 1 minus half बोलते बोलते भी समझ में आता है half. The half will flip in the numerator to become 2. So finally I have got 8 plus 16. 4 and 4. 1 minus 1 upon 5 and 2. सर ये 5 and 2 कैसे है? अभी रिसेंट पास में ऐसा हो गया है कि 2 raised to का पावर्स बहुत कर लिया है. एंड फ्रेंकली मैं एक दो बार बोल भी चुका हूँ बाय नाउ कि फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स 2 raised to 10 आई यूज्ड टू रिमेंबर 1024. सो 1 2 लेस जाना है ना, एक 2 निकाल देना है, तो वी कम डाउन टू 5 and 2. सो वापस इनटू 2 करेगा तो 1. नहीं तो एनीवे कैलसी इज ऑलवेज देयर फॉर यू. आपको धड़ धड़ इक्वल टू दबाना है, आपका इंडिकेटर वो मीटर 10 तक जाना चाहिए. सो 8 plus 16 into 511 upon 512 cross multiply. So let's finish off, but of course we are going to finish off that calculation first. 8 plus 16 we cannot do on the calci what we are seeing right now. 8 plus 16 into तो 24 into कर लेगा. उसे थोड़ी पता है कि बॉडमस में मल्टीप्लिकेशन पहले होता है. So now 16 into 511 divide by 512 and then finally plus 8 on that, it gives me exactly 23.96. If I round it off to 3 places, 969. This is the vertical distance traveled by the ball by the time it hits the ground for the 10th time. Before we leave, a quick recap. First hit एक ही था क्योंकि ऊपर से फेंका था. Then every next hit was 4 up, 4 down, 2 up, 2 down. So all those vertical distances have to be counted no twice. So 2 common, so 4 plus 2 plus 1. But then you also need to understand कि एक hit तो 8 ले लिया है. So बाकी 9 hits होगा यहाँ पे to complete the 10 hits. I can see a good GP over here, not over here. Paragraph में पढ़ लिया था. The next bounce is half the previous bounce. So I knew it's into half into half. Applying the appropriate formula. R is half, so R is less than 1. So we should go for 1 minus R type formula. And then finally simple calculations. Now moving ahead. Question set number 5. GP नहीं लिखा है लेकिन फट से मुझे दिख रहा है into 3 है, into 3 है. दो देखा बहुत हो गया. SN is 364. So first of all your A goes 1, the R goes 3 and the SN is going 364. R is more than 1, so I am going to go for A, R raised to n minus 1 upon R minus. वो बोलेगा मैं अब 1 से आगे रहेगा. It's 364. We are done. Putting in values 1, 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. And that's going 364. So finally what now?
I'll push my 2 over here, plus 1 over here. So I'll straight away land on 3 raised to n. Check it. 364 first multiplied by 2. So that is done. Then plus 1 on that. So finally I come to 729. Now 3 raised to what is 729? So you need to figure it out. Options क्यों उठाना है? आप डायरेक्ट कैलसी को पूछ सकते हो 3 raised to what will be 729. So 3 into equal to. Your indicator is showing 3. If you have cleared the screen. I always say कि once the sum is over and you are moving to next sum, please clear your screen. ताकि indicator fresh reset हो जाए. Now this is square. 3, 4, 5, 6. Okay, on 6. That means your indicator must be showing right now 7. So the n is going 6. 3 raised to 6 is 729. It's perfectly the same thing. So let's finish off. The A is 1 and I can see R is continuously into 2 into 2. Sn what they are providing me, it's 8191. R is more than 1. So R would like to go no before 1. So the formula is going to be A R raised to n minus 1 upon R minus 1. Going 8191. Now A is 1. R is coming as 2. So niche 2 minus 1. So finally I think so all this is the gone. Only plus 1 needs to be pushed on that side. So 2 raised to n is 8192. Fine. Now again clear. 2 into equal to ho gaya tha square. Your screen must be showing 3 on the meter right now. Now keep pressing equal to. I'll have to count because I don't have the indicator over here. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 raised to 10 पे आता है. 11, 12, 13. So n is equal to 13. You did not count it because for you the indicator over there, no indicator over here, it's counting for you. But that must be showing 14 when 8192 must have reached on the screen. So your answer for that has to be, your indicator is 1 more than the power. So your n has to be 13 in that. It's a nice one. Oh, SN ही मुझे अजीब लग रहा है. Sum of n terms of a GP. Whose first term is 1. Okay. The A is 1. The R is half. The sum is, they are saying 1 plus 127 by 128. Even if they write 127 in the form of mixed fraction right now. Again, I would be putting plus over here. Finally, let's select the formula. R was half. So R is less than 1. So he is going to go 1 के पीछे. So 1 minus R raised to n upon 1 minus R. By that time, सामने, let me finish off 128 plus 127. That's 255 upon 128. Cross multiply. Let's start fixing values. A is 1. R is half. Whole raised to n में 1 बोलता है मुझे n क्यों दिखा रहे हो? 2 को ही दिखा दो. And 1 minus half. 1 minus half बोलते बोलते ही half दिख रहा है. Half we flip it on. In the numerator, it becomes 2. 255 upon 128. Check. The 2 comes over here to make it 256. So बहुत सारा काम एक ही step में हो गया. And with pencil तो you can आराम से do it. Now finally I have got 1 minus 1 by 2 raised to n is equal to 255 upon 256. Now a very common mistake what a student does is, he goes for the cross multiply. मैं थोड़ा हंस देता है. एक 2 raised to n काफी नहीं है कि दो जगह दिखना चाहिए अब हमको. Because when you cross multiply, it becomes what? 2 raised to n minus 1 upon 2 raised to n. So unnecessarily you are seeing 2 times 2 raised to n. एक तो मालूम है नहीं हमको वो. ऊपर से दो जगह दिख रहा है. So मैं कभी कभार फनीली ऐसा बोल देता है. Do not spoil the virginity of 2 raised to n. वो अकेला खड़ा रहने दे उसको. In fact, that term I would like to shift it on this side. So वो अलग से खड़ा है उधर. No, minus 1 by 2 raised to n, I shift it on the other side. So 1 by 2 raised to n. And 255 by 256, I'll pull it over here in the minus. Now cross multiply. So it's going to be 1 by 256. Now again cross multiply. So 2 raised to n is going 2 raised to 256, sorry. So again clear the screen. 2 into equal to square हो गया. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. The n is going 8 for me. For you, the indicator must be showing 9. What a wonderful sum. The only place where a student happens to commit mistake बोलेगा तो वो भावुकता में कर गया. इतना मैच्योर होता है तो फिर कहाँ पहुंच गए होते. अभी भी पहुंच ही जाएंगे. When you want to find, let us say x, don't try to move it into multiple places. वो अकेला खड़ा है तो if it is disturbing you, move it on one side and rest of the terms on other side. Just like 1 upon 2 raised to n minus में था, उसको सामने सोलो में खड़ा कर दिया और वो बड़े भाई साहब को इधर ले आया. Then it becomes easy for you.
Now, moving to next, December 21. Half तो दिख रहा है, but we have to find the max value of n. To keep your Sn of this GP sequence, can I call GP? Yeah, I can see that. 1 by 2 say 1 by 2 square, say 1 by 2 cube. Mane continuously they are going into half all the time. So it's a GP for me. Sn has to be kept below 0.998. मैं बोला no issues. So first of all my A is half. So unlike your previous sums, काफी sum से हमारा A 1 चल रहा है. But ठीक है ना. R is equal to half. And Sn needs to be kept below 0.998. फिर देखते क्या ढूंढना है. Largest value of n पूछ रहे, लेकिन as of right now I don't understand why they are saying largest value of n. Maybe inequality sign है शायद उसके लिए. R is half, so R is less than 1, so he'll be going after 1. So it's going to be A 1 minus R raised to n upon 1 minus R. That should be less than 0.998. Now let's bring in the value. Half 1 minus half raised to n. It's half the whole raised to n, but now you all know कि क्यों ऐसा है. 1 minus half. 1 minus half is already half, and half gets cut. चलो कुछ है ही नहीं. So can I just move the entire thing यहाँ पे? I got 1 minus 1 by 2 raised to n. Right kind of situation what we were in the previous sum. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या सीखा तू लाइफ में फिर? अब भी तो समझाया था. 2 रेज टू n ऑलरेडी तकलीफ दे रहा है, ऊपर से आप घुमा घुमा के उसे मल्टीपल प्लेसेस पे रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, अपने को ही काट रहे हो. माइनस 1 बाई 2 रेज टू n को सामने ले जाएगा तो 1 बाई 2 रेज टू n प्लस 1 बाई, and 0.998 we take it over here in the subtraction. So on the calci 1 minus 0.998. So it's going to be 0.002 less than 1 by 2 raised to n. Now 2 raised to n इधर लाते हैं and 0.002 यहाँ लाते हैं. So 2 raised to n is less than. So treatment has to be done exactly like what you have been doing in equal to sign. 0.002. So 1 divided by 0.002 and that's going to be 500. So 2 raised to n has to be less than 500. So I started. मैं क्लियर करके शुरू किया. 2 into equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8. On 9, it crosses 500. So when n is 9, this is going 512, which I should not allow. So max n you should allow is 8, and karke they say the largest value of n. You want to keep your 2 raised to n का value less than 500. The moment n becomes 9, सामने हो जाता है 512. So it goes above 500. So don't allow n to become 9. उसके पहले तक चलेगा because 8 तक और 256 ही था. So max n allowed should be from your end should be 8. करके यहाँ पूछा largest value of n. Working seem to be almost the same, but if we just can brief once again this part, थोड़ा dicey part, कितना भी बोला वो एक आध घंटे बाद स्टूडेंट वापस से ये 2 raised to n को LCM में ले ही लेता है क्रॉस मल्टीप्लाई. And once you move it over there ना, then it becomes quite ugly. फिर रास्ता खुलता नहीं because आपने चोक कर दिया उधर. दो जगह 2 raised to n. So now finally 1 by 2 raised to n we shifted on that side, maintaining the virginity of 1 by 2 raised to n. 0.998 इधर subtract में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 raised to n ऊपर आ जाएगा, 0.002 नीचे. On the calci 2 raised to n less than 500. I got it. Max and I should go is 8. 9 जाएगा तो 512 हो जाएगा.